Dear students, good evening. I am Sushil Khanna. I have been taking a series of organic chemistry lectures with you, and I am pleased to inform that the students have been going through this series in a very enthusiastic manner. I hope and wish they will continue to do so, because the way of presentation must help you. It should make you learn the things in an easy manner. Today I am going to take a word which you might have heard of, hyperconjugation, conjugation. Before that, we need to study something about special carbocations. So today's heading is special carbocations. Special carbocations. We are going to take allyl carbocation, vinyl carbocation, benzyl carbocation, and phenyl carbocation. Allyl carbocation, CH2 double bond CH, CH2 plus. It is allyl carbocation. It is vinyl carbocation. It is benzyl carbocation. And this is phenyl carbocation. Phenyl carbocation. We are going to discuss their characteristics in general, comparative stability, and if similarity they have got between each other. Allyl carbocation is when C plus is attached to sp2 carbon. C plus is attached to sp2 carbon, 3 sigma 1 pi. Vinyl carbocation is when carbocation is itself. Carbocation itself is sp hybridized. If you just see is having, this carbon is having 2 sigma 0 lone pair, 2 sigma 0 lone pair. Benzyl carbocation is when sp2 carbon plus is attached to phenyl link. sp2 carbon plus with phenyl link, benzene ring. You can call benzene, I will distinguish this later on. This is when the
carbon of benzene ring, one carbon of benzene ring is sp. If you just observe this, this is having no hydrogen. This is having no hydrogen. So what is this carbon having? This carbon is having 2 sigma, 0 lone pair, sp hybridization, carbon plus. Again I will repeat it. Carbon with positive charge at 2 sigma bond, 0 lone pair, 1 pi bond, and it is sp hybridized. Like this carbon is having 2 sigma bonds, 0 lone pair, sp hybridized. So, one thing is very clear, if you see analogically, if you see structurally, allyl is CH2 plus, then attached to sp2 carbon. Allyl is isostructural with allyl is isostructural with benzyl. In both the cases, carbon plus attached to sp2 carbon, carbon plus attached to sp2 carbon. But here it is benzene. This is CH3. CH2 plus, CH double bond CH, CH double bond CH. This is allyl part. This is allyl part. If you see phenyl and vinyl, in both the cases carbon is sp, but it is attached to benzene ring, it is attached to single double bond, it's a double bond. एक पॉइंट याद रख लीजिए, कार्बन प्लस sp attached with C double bond, attached with CH2. Carbon plus sp attached with sp2 carbon. विनाइल और फिनाइल में sp कार्बन sp2 से जुड़ा होता है। एलाइल और बेंजाइल में sp2 कार्बन सब sp2 से जुड़ा हुआ है। ये देखिए आप, ये भी sp2, 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 ये भी sp2। यहाँ पे कार्बन क्या है बेटे, यहाँ पर क्या है, ये sp, और जुड़ा किससे हुआ है, sp2 से। किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से। और यहाँ पर क्या है, ये कार्बन क्या है, sp, ये वाला कार्बन, क्योंकि इसमें H तो है नहीं। 2 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास कौन से 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये और एक ये, और ये अटैच किससे, sp2 से। तो एक समरी हो गई, C प्लस अटैच विद sp2, इट इज विनाइल ऑब्लिक फिनाइल। लेकिन अगर हम देखें CH2 प्लस अटैच विद CH डबल बॉन्ड CH2,
it is allyl-benzyl. 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 Now we will compare allyl and benzyl first regarding their stabilities. एक समरी दे देता हूं दोबारा, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. एक समरी बेटे, अगर किसी कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर चल रहा है तो ये कौन सा कार्बोकेटायन है? एलाइल. और अगर किसी कार्बन में ये चल रहा है तो व्हाट इज दिस? विनाइल. अगर किसी कंपाउंड में ये चल रहा है तो इट इज विनाइल. और अगर किसी कार्बोकेटायन में ये स्ट्रक्चर चल रहा है तो व्हाट इज दिस? एलाइल. हमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन, सिर्फ एलाइल और विनाइल का स्ट्रक्चर याद नहीं करना, वो किस कंपाउंड में कौन सा कैटायन है ये भी देखना है, ये भी ऑब्जर्व करना है. इसके बाद कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से. अब हमारे पास कंपैरेटिव स्टेबिलिटी, एलाइल एंड बेंजाइल, और स्टेबिलिटी में एक ही कंसेप्ट काम आएगी और वो है रेजोनेंस. This is allyl carbocation. This is benzyl carbocation. आपको रेजोनेंस पढ़ाया जा चुका है. रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मोबिलाइज हो जाएगा. रेजोनेंस की सीरीज को एक बार दोबारा पढ़िए. रेजोनेंस की सीरीज को एक बार दोबारा पढ़िए बेटा. The structures are interconvertible. Why structures are interconvertible? Because they are equal energy structures. Because they are equal. यहां पे क्या खासियत है, अगर ये यहां चला जाता है तो क्या आ जाएगा? अगर ये यहां चला जाता है तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस. और ये स्ट्रक्चर भी तो अपने आप में एलाइल है. ये स्ट्रक्चर भी तो अपने आप में एलाइल है. कैसे है? ये sp2, ये sp2, फिर sp2, फिर sp2. हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे, मैं अभी बना के दिखाता हूं, इज एलाइल कार्बोकेटायन. इसको आप भी बना के देखिए, आप भी बना के देखिए. अगर हमने यहां से इसको ऐसे शिफ्ट किया तो क्या होगा बेटे? क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे प्लस, ये हो गया, यहाँ प्लस
और यहाँ क्या आएगा, ये क्या है बेटा, sp2, क्या है ये, sp2। इधर किससे अटैच है, sp2 से, इधर किससे अटैच है, sp2। हर तरफ एलाइल कार्बन है। और एलाइल की खासियत हमें क्या बताइए, वेरी सुन लीजिए, एलाइल कार्बोकेटाइन इज व्हेन CH2 is attached to this structure sp2 कार्बन। अब हमारे पास यहाँ पे फिर एक और स्ट्रक्चर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये इधर आ गया, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले आपको ये समझा दें, क्या आएगा बच्चे, यहाँ क्या आएगा, ये आ गया, ये फिर प्लस क्या हो गया, ये प्लस किससे अटैच है, sp2, ये प्लस किससे अटैच है, sp2। ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज एलाइलिक, और एक तरफ से नहीं, दो तरफ से एलाइलिक है। तो आप सोचिए कितनी स्टेबिलिटी होगी। रेजोनेंस थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, थ्रू आउट द रिंग, रेजोनेंस थ्रू आउट द रिंग, resonance of pi electrons with plus charge throughout the benzene ring। और दूसरा पॉइंट क्या है, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक एलाइल कार्बोकेटाइन है। सो इट इज वेरी स्टेबल। यहाँ पे तो दो ही स्ट्रक्चर आएंगे, यहाँ तो कुछ और आ नहीं सकता। तो विच इज मोर स्टेबल, देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मच ग्रेटर देन एलाइल। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमारे मन में जब मैकेनिज्म आते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों में अड़ना पड़ता है। ओहो, एलाइल कहाँ से आ गया, विनाइल कहाँ से आ गया, बेंजाइल कहाँ से आ गया। ये छोटी छोटी चीजें अगर माइंड में पहले करें, आपको सही बता दें जब हम मैकेनिज्म कराएंगे, कुछ है ही नहीं मैकेनिज्म। ये छोटे छोटे 4-5 पॉइंट, वेरी स्मॉल पॉइंट्स। अब आप स्टेबिलिटी देखिए, विनाइल और फिनाइल। जिस कार्बन पर प्लस है, जिस कार्बन पर प्लस है उसी पे पाई बॉन्ड, तो रेजोनेंस कैसे करेगा, नहीं कर सकता। कहां से करेगा, ये कार्बन तो वैसे ही sp हाइब्रिडाइज्ड, और दूसरा इसका प्लस कहां जाएगा रेजोनेंस में, जिस पे पाई है उसी पे प्लस, रेजोनेंस तो एडजेसेंट कार्बन से होता है, शार्पनेस और कम होता ही नहीं। No resonance, no resonance, no stability। भी जनरलाइज करेंगे अब, इसमें तो स्टेबिलिटी का कारण ही नहीं बनता। अब बेंजीन रिंग में भी 3 पाई है, लेकिन जाएगा कहाँ, जिस कार्बन पे प्लस है वहीं तो पाई है, वो आगे कहाँ जाएगा, उसको तो खुद इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। जिस कार्बन पे प्लस है वहां सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, इस प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 सिग्मा 1 पाई, क्या कहा जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस था तो पाई यहाँ आ सकता था, यहाँ थोड़ी आ सकता है। इसलिए विनाइल एंड फिनाइल, और एक बच्चे ने कहा सर यहाँ 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तभी तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, दे आर नॉट स्टेबल। देयरफॉर जो स्टेबल इंटरमीडिएट है, देखिए आप, जो स्टेबल इंटरमीडिएट है
the formation of stable intermediate. इंटरमीडिएट क्यों है? क्योंकि भाई ये तो प्लस चार्ज है, ना ये रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में कभी प्लस चार्ज हुआ है, प्रोडक्ट में कभी हुआ है, वो बीच का मीडियम है जिसके थ्रू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं, वो इंटरमीडिएट है। तो क्या लिखा हमने? द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन इज easier and more quantity of product is formed. More quantity of product is formed. अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, which will form OH से कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? हमारी नेक्स्ट क्लास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वो क्लास का मैं आपको एक छोटा सा हिंट डाल दूंगा। टू टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास यहां पर Cl को निकलना पड़ेगा, तो क्या बनाएगा? यहां Cl को निकलना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न ये है कि Cl निकलेगा कहां, कहां नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? प्रश्न ये है कि Cl कहां निकलेगा, कहां नहीं निकलेगा, निकलेगा तो ही तो OH आएगा। पहले केस में दो रीजन है कि वो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा या स्लो करेगा। क्या रीजन है? देखिए, Cl के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये पाई वन यहाँ जाएगा, रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हो गया बेटे। पाई विद लोन पेयर, रेजोनेंस सीरीज में देखिए आप मेरा, रेजोनेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद लोन पेयर्स। अब ये लोन पेयर जब यहाँ आ गया, इससे डबल बॉन्ड बना लिया, देयरफॉर Cl इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। और अगर मान लो किसी कंडीशन में आपने इसको बना भी दिया, तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? इफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, अगर इंटरमीडिएट यहां बनेगा तो क्या बनेगा? विनाइल, which is not resonance stabilized, which is not resonance stabilized, not resonance stabilized। अब यहां पे अगर इंटरमीडिएट बनता है तो बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो रेजोनेंस में आ रहा है। और जो रेजोनेंस में आ रहा है वो जल्दी बनेगा, और दूसरी बात ज्यादा बनेगा। जो स्टेबल है वो ज्यादा भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा। दुनिया में हर बंदा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अगर आपको पता हो एक तरफ कम रास्ते में पत्थर है और एक तरफ फूल है, तो आप फूलों से जाएंगे ना, पत्थरों से थोड़ी जाएंगे। हर इंसान यूनिवर्स की लिविंग है, नॉन लिविंग बॉडी, आई कैन प्रूव इट। नॉन लिविंग बॉडी भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। एक पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। एक पत्थर ऊपर से नीचे ग्रेविटी उसको खींच रही है, उसको क्या पड़ा है, ऊपर क्यों नहीं जा सकता, वो भी स्टेबिलिटी की, mgh, लोअर एनर्जी। हर लिविंग और नॉन लिविंग बॉडी हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। कंडीशंस उसको फेवर करे ना करे वो एक इशू अलग है, सराउंडिंग उसको फेवर करे ना करे ये एक अलग इशू है। तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये रेजोनेंस में आ गया। अब आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। विनाइल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट
विनाइल कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर एलाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया गया, यहाँ क्लोरीन जल्दी निकलेगा या यहाँ निकलेगा, कहाँ पे क्लोरीन निकलेगा हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसका कार्बोकेटाइन क्या होगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहाँ पर दो फैक्टर आ गए, एक तो एलोन पे रेजोनेंस में, और अगर Cl माइनस जल्दी निकल जाता है तो विनाइल कार्बोकेटाइन तो बनेगा व्हिच इज नॉट स्टेबल। इसलिए हमें थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है, हाई टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है। इज इट क्लियर बेटा? हमारे मन में कंसेप्ट बड़ी क्लियर होनी चाहिए। एक बात और खास, ये याद करने वाला पॉइंट है, क्योंकि जो डिस्कवरी होती है कई बार ऐसी होती है जो रिसर्च ओरिएंटेड उनके प्रैक्टिकल पे होती है, वो प्रैक्टिकल हमारे लेवल पे डिस्कस नहीं हो सकते। इसलिए एक खास बात कि अगर किसी कंपाउंड में एलाइल कार्बोकेटाइन है, एलाइल ग्रुप है, कार्बोकेटाइन की बात नहीं कर रहा मैं, यह आपको याद करना है। इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं ना बेटा, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट की कंडीशन, उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स बहुत पढ़ाई करने के बाद आने शुरू होते हैं। अब एक ग्रुप है जैसे ये वाला, ये अगर मैं इसमें NBS डालता हूँ, अगर मैं NBS हमें बताते हैं आपको क्या है, अगर मैं इसमें NBS डालता हूँ तो मुझे NBS डालने पर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये वाला। What is N-bromosuccinamide? NBS is N-bromosuccinamide। ये क्या है, बहुत आसान से समझ लीजिए, CH2C डबल बॉन्ड OH, CH2C डबल बॉन्ड OH, 4 कार्बन के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को, वैसे तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक है ही है सब, लेकिन इसका एक्सप्रेशन नेम दिया गया सक्सिनिक एसिड। जब इसमें हम हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा और ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। इसमें जब अमोनिया डालेंगे हम, ये कैसे बना ये बता रहा हूं आपको, आपको पता होना चाहिए ना NBS है क्या, आपको पता होना चाहिए NBS क्या है। NH बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटे, NH। और इस NH में अगर हम Br2 डाल दें, इसका नाम है सक्सिनामाइड। जब इसमें हम ये डाल दें तो हमें मिलेगा N-bromosuccinamide। N-bromosuccinamide में ब्रोमीन जो होता है, ये जो ब्रोमीन है, it displaces allylic hydrogen। अब यहां पे डाला तो इसका allylic हाइड्रोजन क्या है, CH2 वाला, तो यहां पे क्या आ गया, N-ब्रोम, ये बेंजाइल ब्रोमाइड। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास और आपसे पूछा गया इसमें NBS डाला, NBS डालने पर
NBS डालने पर ये भी एलाइलिक पोजीशन, ये भी एलाइलिक पोजीशन, यहां भी Br आ सकता है। वो एक ही बात है, आप कहीं भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें ये दिया जाए और हमने कहा हमने NBS डाला, तो हमें क्या मिला, क्या मिला हमें, ब्रोमीन आ गया यहाँ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास ये एलाइलिक, इसको क्या कहते हैं हम, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एक बात अब याद रखने वाली, एलाइलिक पोजीशन जहां पर H रिप्लेस हो रहा है तो sp3 होना चाहिए। ये कार्बन कौन सा है बेटे, sp3 sp3 sp3। अगर यहां डबल बॉन्ड होता, अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो एलाइलिक पोजीशन कुछ नहीं है बेटा, यहां पर नो रिएक्शन विद NBS। तो हमने देखा एलाइलिक पोजीशन पे क्या रिप्लेस हो गया, H की जगह, लेकिन कंडीशन क्या है, वो कार्बन जिसपे H आ रहा है, जिसपे Br आके H हट रहा है, इट शुड बी sp3। और ये रिएक्शन कार्बन के साथ हाइड्रोजन जब भी निकलेगा फ्री रेडिकल में निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। इसलिए NBS इज ए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज ए free radical substitution, H replaced by Br। H replaced by Br। समझ आ गया बेटा? तो एक समरी करें, एलाइल और बेंजाइल एक जैसे, विनाइल और फिनाइल। एंजाइल में CH2 प्लस, पड़ोसी कार्बन पे sp2 कार्बन। फिनाइल में या विनाइल में जिस कार्बन में प्लस है वो sp, पड़ोसी sp2। स्टेबिलिटी आपको बता दी गई, बेंजाइल की एलाइल से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर में हर स्ट्रक्चर एलाइल स्ट्रक्चर है। और आपके पास ये आई गया बेटा, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल, विनाइल कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक हो या न्यूक्लियोफिलिक, जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे पास अगर कहीं पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो प्रेफरेंस उसको दी जाएगी, क्योंकि एलाइल कार्बोकेटायन स्टेबल। इसलिए आपको इस बातों का ध्यान रखना है। और आई विश वीडियो पूरा पढ़ा करिए आप बेटा। पूरा वीडियो पढ़ने से जो आपके नॉलेज का अपडेशन होगा वो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से, कोई आपसे कंपेयर नहीं कर सकता। आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखिए, मुझे पूरा वीडियो पढ़ना है। हम घर के और काम भी तो करते हैं, हमें अपने अंदर इतना पॉजिटिव रहना है कि हमारा वीडियो जब तक पूरा नहीं होगा हमें नहीं छोड़ना, ताकि मेरे ज्ञान में कहीं अधूरापन ना रहे। इनकम्प्लीटनेस ऑफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज, बिकॉज यू से दैट आई नो द टॉपिक बट यू डोंट नो बट यू से यू नो। तो वो तो इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं अंधेरे में चल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं रोशनी में चल रहा हूँ। ऐसे कैसे काम बनेगा? आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सीरीज देखिए, तो उससे आगे क्या कल हमारा टॉपिक होगा हाइपर कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन।
कल हमारा टॉपिक होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, जो बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं आपको इस लेवल पे लेके आऊंगा परमात्मा कह रहे हैं सरस्वती जी की कृपा से कि आपको कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए तो सही, लेकिन आप वीडियो को पूरा पढ़िए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे, एंजॉय विद केमिस्ट्री।